हेलो देवराइट्स, वेलकम टू एक्सक्लूसिव सेशन बाय यूबी। आज हमारे साथ मौजूद हैं योगिनी करुणा पुरोहित। हम इनसे योगा से रिलेटेड डेली लाइफ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो आपके और हमारे मन में रोज आ जाते हैं। Welcome, ma'am. Can you please introduce yourself? First of all, thank you so much, Udaipur Blog, for having me. And as Sir introduced me, my name is Karuna Purohit, and I am a certified yoga teacher and contemporary meditation coach. Along with giving different forms of yoga classes, I am also into giving therapies to chronically depressed people and also into diet consultancy, giving an overall health being fitness. So let's start with questions, ma'am. तो बेस्ट टाइम कौन सा है योगा प्रैक्टिस करने के लिए? बेस्ट टाइम जो रहता है वो टाइम अच्छा है, वो टाइम अच्छा है। See, in today's time when the world is running 24 hours, सबके बहुत odd timings होते हैं when it comes to career. So I would suggest कि आप आपका रूटीन पहले चेक करो आपके प्रोफेशन के हिसाब से। अगर आपको सूटेबल हो रहा है कि मुझे शाम को करना है, डू इट इन शाम को। अगर आपको लगता है कि मैं सुबह कर सकती हूँ, डू इट इन सुबह। डोंट बी रिजिड विद योर सेल्फ। ट्राई टू बी लाइक फ्लेक्सिबल व्हेन इट कम्स टू योर रूटीन्स, और जितना लंबा वो सस्टेन कर सके। सो पहले आप आपका रूटीन और आपका प्रोफेशन चेक करो एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड योर बेस्ट टाइम। यू कैन डू इट एनी टाइम, कोई भी टाइम, मतलब यस। आप आफ्टर मील के 4 घंटे बाद आप आराम से कभी भी कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि योगा जो है एक रिलैक्सेशन पोस्ट वर्कआउट है, प्रॉपर वर्कआउट नहीं है। ओके, तो ये बात सच है? सी देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगा एंड it is gentler on the body when it compares to running or strength training workout. But even I was reading an article of brain behavior and immunity, and it is a review from 2022 itself, which claims that yoga is mentioned as overall health related fitness activity. Okay, the chronic inflammation is the biggest culprit of many situations such as heart disease, cancer, diabetes, and yoga has been an evidence since beginning that it reduces your chronic inflammation. It lower down your stress hormones, cortisol को कम करता है ये, right? So along with your strength training, it is also proven that yoga is giving you strength and cardiorespiratory functions. So along with that, you are also internally you are reducing the stress hormone. So it is not just a relaxation workout, but also it does greater benefits to your body as well. It gives you strength, it gives you stamina, it massages your internal organs, it removes your chronic inflammations, it reduces your stress, it balances your hormones at the same time, and it is also great for your cardiorespiratory system. नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा ये था कि डेली योगा प्रैक्टिस करने से वेट लूज होता है? Yes, 110%. It also helps you to maintain that weight. For an example, आपने 3 महीना बहुत ही aggressively fitness regime को follow किया है. Okay, what yoga does is basically when you go back into your life, जब आपके पुराने routines में और daily life में जब आप वापस enter करते हो, और if you are not able to follow that kind of aggressive or obsessive regime that time, आप collapse नहीं करोगे when it comes to weight. बहुत लोगों का डर होता है। सी, वेट लॉस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वेट लॉस बहुत आसान चीज़ है आज के टाइम पे। डिपेंड ये करता है कि आप इस चीज़ को कैसे परस्यू कर रहे हो, राइट? कि आपने 3 महीना 6 महीना अग्रेसिवली वेट लॉस कर दिया, यू कट डाउन एवरीथिंग एंड यू आर गोइंग ऑन अ कीटो और व्हाटसोएवर, एंड वंस यू गो बैक इन योर लाइफ अगेन एंड यू आर नॉट एबल टू फॉलो दैट, द बिगेस्ट फियर इज कि मैं इससे वापस मोटी या मोटा हो जाऊंगा खा के। लीव कर दिया तो वापस, या सही, सबसे बड़ा डर है लोगों का कि ये अगर मैंने खा लिया फिर से तो मैं फिर से वेट गेन करना चालू कर दूंगा या कर दूंगी। व्हाट योगा डज इज, ये आपका ग्रेजुअली वेट लॉस करता है, इसलिए लोगों में थोड़ा पेशेंस कम होता है समवेयर, बट इफ दे बिकम कंसिस्टेंट विद द योगा जर्नी, वो ग्रेजुअली लॉस किया हुआ वेट आपका कभी भी ग्रेजुअली कोलैप्स करके बढ़ेगा नहीं, तुरंत कभी नहीं बढ़ेगा। इट विल टेक टाइम बिकॉज आप नेचुरल वे से उसको वेट लॉस कर रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ये है कि योगा के साथ साथ डाइट की कितनी इंपॉर्टेंस है? बीट एनी मूवमेंट व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, आप वेट ट्रेनिंग करो, आप पिलाटेस करो, आप योगा करो, डाइट का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है इसमें। इट्स ऑलवेज 70% ऑफ योर डाइट दैट प्लेज द मेजर रोल इन योर फिटनेस जर्नी, एंड 30% इज वॉट यू डू इन दैट 1 or 2 hour ऑफ द फिटनेस रिजीम। सो आपके 1 घंटे पे रिजल्ट डिपेंड नहीं करता है, आप पीछे के 18 घंटे क्या कर रहे हो उस पे उस 1 घंटे का रिजल्ट मिलता है। हाउ मच स्लीप यू आर गेटिंग, व्हाट टाइम यू आर स्लीपिंग, आर यू वेकिंग अप फ्रेश और नॉट, आप कितना हाइड्रेटेड हो पूरे दिन में, फाइबर कितना ऐड है आपके मील्स में, प्रोटीन्स कितना है, विटामिन्स चेक है या नहीं है। सो दीज ऑल पॉइंट्स कंबाइंड क्रिएट योर प्रोग्रेस टुवर्ड्स द फिटनेस जर्नी।
So yes, there is a bigger significance of the diet when it comes to fitness. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो एनवायरनमेंट है बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत लोग में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो उसके लिए कोई टेक्निक्स है जो यूज करनी चाहिए इस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, एंजाइटी को खत्म करने के लिए? Okay, see, first of all we have to understand this कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हैबिट्स और पैटर्न्स को बनाता है, ठीक है। हम स्ट्रेस में, डेली स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो हमारा पैटर्न बन जाता है जो सबकॉन्शियस माइंड पिक करता है। सो लाइक फॉर एन एग्जांपल, इफ वन डे यू आर कमिंग एंड आस्किंग कि आज मैं एक ब्रीदिंग टेक्निक कर लूँ तो मेरा स्ट्रेस नॉर्मल हो जाएगा क्या, आपको एक पॉइंट तक रिजल्ट मिलेगा, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ए पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपका नर्वस सिस्टम कितना फ्लाइट एंड फाइट मूड में रहता है, दैट मीन्स आप उतना स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हो, आपको उसको रिलैक्स रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। सो आई वुड सजेस्ट कि इसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स जितनी भी होती है, बीट अनुलोम विलोम, बीट यू कैन यूज़ कपालभाति, बीट यू कैन यूज़ भस्त्रिका, बीट यू कैन यूज़ उड़ियान बंद, दैट इज इनहेल होल्ड exhale hold. There are different kinds of, various kinds of breathing techniques which you can use for to combat your daily stress and anxiety. मैम ऐसी कोई बुक है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे योगा के लिए, योगा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए कोई बुक सजेस्ट करना चाहेंगे? See, there are different forms of yoga, हाटा योगा, अष्टांग योगा, विन्यासा योगा एंड एवरीथिंग, जो हम फिजिकलिटी के ऊपर बात करते हैं। बट योगा का एक अदर साइड भी है, दैट इज इनटू स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता में भी आता है। सो आई हैव 2 बुक्स विद मी। अगर आपको थोड़ा डीपर स्किन व्हेन इट कम्स टू mindfulness and spirituality, these are the 2 books that I will suggest. First is the complete book of yoga, which describes you for the different forms of yoga, that is karma yoga, bhakti yoga, raja yoga. And the second, the most important one, the autobiography of yogi, and I think many people have seen this on social media as well. But yes, these are the very eye-opening book when it comes to knowledge on the deep skin of yoga. So I would suggest these 2. So ma'am, with this let's move to last question. What is the end goal of yoga? See, I think depending upon individual's journey, हर योगी और योगिनी के अपनी अपनी जर्नी के हिसाब से, बट पर्सनली मुझे ये लगता है लिबरेशन इज़ द एंड गोल ऑफ योगा, to purify your mind, to control your senses, to give yourself a freedom from desires and bondages, and ultimately connecting the soul to that one higher divine energy, to that cosmic manifestation. I think that's the goal of yoga. Thank you ma'am for being with us. Thank you so much for having me. So that's all for today. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए फॉलो करें उदयपुर ब्लॉग एंड उदयपुर ब्लॉग एक्स को।